Welcome everyone. So, how are you all doing? So, let's continue with the chapter that's population. हम वापस से chapter start करते हैं and we'll be quickly finishing up with chapter population. बहुत ही easy and simple chapter है. The topics are very simple and understandable also. Okay, so we started with the basic introduction. हमने introduction से start करा था, whereby we understood resource, natural events like disasters, tsunamis, human influence, how human beings are producers and consumers of the earth resources. So we discussed all this and we discussed about census as well. हमें census पूरी information provide करवाता है about the population, right? So हमने census के बारे में भी बात करी थी and you know that census जो है वो आपका हर 10 साल में एक बार करा जाता है. So in a decade you see that in every 10th year census करा जाता है. ठीक है. We moved ahead discussing some of these questions like population size and distribution, population growth and the process of population change, characteristics or qualities of the population. And we completed the population size and distribution. हमने population size and distribution का topic complete कर लिया था. We moved ahead discussing population growth as well. Today we'll be discussing about the process of population change. हम आज process of population change discuss करने वाले हैं. All right. So पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन हमने स्टार्ट करा था, जहां पर हमने देखा कि कौन कौन से आपके रीजन्स हैं, कहां पर आपको हाई डेंसिटी पॉपुलेशन मिलती है, राइट. सेंसस के अकॉर्डिंग हमने इसको पूरा स्टडी करा, डेटा देखा था. वी अंडरस्टूड दिस ग्राफ एज वेल. पाई डायग्राम जो है आपका, इसको भी हमने समझा था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन. बाय डेंसिटी ऑल्सो वी अंडरस्टूड कौन से रीजन है, कहाँ पर आपको ज्यादा पॉपुलेशन मिलती है, कौन से रीजन जहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी वेरी हाई, and what is the reason behind having the high concentration of population in those areas, right? Okay. And why there is less population, then कौन सा state है जहाँ पर सबसे ज्यादा आपको population मिलती है. Also we discussed about the states having less population. So this we did, and population growth we started, whereby we understood that population growth बहुत ही एक dynamic phenomena है. It's a dynamic process. It's not a static or a constant, subject matter. बहुत dynamic subject matter है. I also showed you the worldometer, whereby we checked the live population status. जहाँ पर हमने live population status check किया था. Isn't it? That was really really interesting to note that. This is the influence of the interaction of the three process: birth, death and migration. यानी कि जो आपका population growth and the process of change, that is actually influenced by the three process: birth, death and migration. That also I discussed with you in the previous part. Then we moved ahead discussing what is annual growth rate. Annual growth rate क्या होती है, हमने ये ग्राफ डिस्कस करा था. यहाँ पर आप देख सकते हैं 1951 से लेकर के 2001 तक किस तरीके से पॉपुलेशन में चेंज आया है, हाउ द पॉपुलेशन हैज चेंज्ड. यू कैन सी हियर द एनुअल ग्रोथ रेट. यहाँ पर आप एनुअल ग्रोथ रेट देख सकते हैं. ओके, सो वी डिस्कस्ड दिस मच कंप्लीटली, हमने पूरा डिस्कस कर लिया था. Okay, so now before beginning, I would like to show you one picture that I just found. अभी अभी मुझे मिली है वो picture and I found it. So we can see that picture. See here. I hope it's visible to you and you can see the picture. यहाँ देखिए आप. This is the recent news just a few minutes back. Today is World Population Day. Basically 11th July आपका World Population Day आता है. It is important to note that 11th July World Population Day.
since we are studying the chapter population, so we should know this thing कि आपका population day कब आता है, ठीक है? So I really found it interesting to tell you. So it's 11th of July. 11th July is your population day. ठीक है? So 11th July आपका population day आता है. And you can see the news over here. ये जो news headlines हैं आप देख सकते हैं. India to surpass China as most populous nation by 2023 as Earth sees 8 billion inhabitants. It's a United Nations report. Okay, Earth population will peak in 2080 at 11 billion. So you can just imagine कि कितना तेजी से population increase हो रहा है and where we have reached. And by 2023, we are expecting the first position and pushing back China in the population. So the 11th July is World Population Day. World Population Day कब आता है? You should know this. That is 11th July. And you can see that India will be surpassing China as the most populous nation by 2023. ओके सो आप देखिए कि किस तरीके से आपकी कंट्री की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है. वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट एज वेल. सो आई फाउंड इट वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल यू वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब आता है एंड हाउ you can see that this is a very recent news of United Nations. Just a few minutes back I saw, and that's why I wish to share it to you. So today we'll be beginning with the process of population change and growth. आज हम start करने वाले हैं the process of population change and growth. There are three main process of change of population. तीन main processes होते हैं population change के. One is your birth rate, second is your death rate, and then you have migration. The natural increase of population is the difference between the birth rate and the death rate. Okay, so the natural increase आता है population के अंदर, that is the difference between the birth rates and the death rate. So the natural increase of population is the difference between the birth rate and the death rate. Birth rate and death rate में जो difference होता है, that is the natural increase in population, because ये process है हमारी lifestyle का, जहाँ पर आप देखते हैं कि कुछ लोगों की डेथ होती है एंड एट द सेम टाइम यू विल सी कुछ लोगों का बर्थ होता है, राइट? जैसा मैंने आपको वर्ल्डोमीटर में भी उसमें दिखाया था किस तरीके से बर्थ एंड डेथ हो रही है, किस नंबर पे वो पूरा आप देख सकते हैं कि वर्ल्डोमीटर रहा था, वहां पर आपको पूरा शो करा जा रहा था द डेथ ऑल्सो, कितना नंबर हो रहा है डेथ्स का, ठीक है, एंड व्हाट्स द नंबर बर्थ गोइंग ऑन, दैट ही ऑलरेडी सॉ, हमने वो आपको दिखाया था, ठीक है. Okay, so I just wish to show it to you again. Once again, we can see, we can have a look at here. See, today births, आप देख सकते हैं birth, death. Can you see population growth? कितना population growth है? So, you got it. What's the difference? The natural increase in population is the difference between the birth and the death. तो birth और death के बीच का जो difference होता है, उसको बोला जाता है population growth. आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, राइट? एंड यू कैन ऑलवेज सी ओवर हियर कि आप डिफरेंस देख रहे हैं, यहाँ पर आपको क्लियरली अच्छे से समझ में आएगा. दिस इज द वर्ल्ड पॉपुलेशन दैट वी आर लुकिंग हियर. आप ये देखिए, ये है 229, दिस इज 229 रिटन ओवर हियर राइट नाउ. अभी ये 229 चल रहा है, ठीक है. देन यहाँ पर आप देख सकते हैं 96. सो व्हेन यू विल बी सब्ट्रैक्टिंग 229, 96 को आज सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो यू विल गेट 133. तो आप देख सकते हैं ये रहा 133. सो आर यू गेटिंग इट? The difference between the birth and the death is the natural increase in the population. This is the natural increase in population because आपका ये process है, you cannot do anything against this process. ठीक है? So you can very well see the difference
ये वाले नंबर्स जो है अभी कांस्टेंट है, ये अभी कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहे हैं. सो यू कैन एग्जैक्टली सी, isn't it interesting part to see the life change in the population? See, okay. So now we move ahead. Birth rate क्या होती है? It is the number of live birth per 1,000 persons in a year. पूरे साल में कितने birth हुए हैं per 1,000 persons in a year. That's your birth rate. It is a major component of growth because in India birth rate have always been higher than the death rate. अगर आप देखें तो जो बर्थ रेट होती है वो हमेशा आपको ज्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू द डेथ रेट, एंड दिस इज सो ट्रू. अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप यहाँ इस वर्ल्ड मीटर में भी देख सकते हैं हाउ यू कैन सी दैट द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ एंड डेथ. बर्थ इज मोर, ज्यादा बर्थ हो रहा है, और डेथ देखिए आप कम है. सो दिस इज व्हाट द लाइन इज सेइंग टू यू. यही लाइन आपको बोलना चाह रही है यहाँ पर, दैट it is a major component of growth because in India birth rate have always been higher than the death rate. I hope ये लाइन आपको क्लियर हो गई होगी. Then death rate is the number of death per 1,000 persons in a year. कि पूरे साल में कितनी डेथ्स हुई है, और वो हम इन रेफरेंस लेके चलते हैं पर 1,000. ठीक है. The main cause of the rate of growth of the Indian population has been the rapid decline in the death rate. See, decline in the death rate क्यों? Can you just suggest some reasons कि death rate में decline क्यों हुआ होगा? Come on, think. Just think of it. डेथ रेट में डिक्लाइन क्यों आया होगा? व्हाट वुड हैव बीन द रीजंस कि डेथ रेट्स में हम कह रहे हैं यहाँ पर कि डेथ रेट में डिक्लाइन देखा गया है. अब आप देखते हैं कि डेथ्स कम होती हैं एज कम्पेयर टू द प्रीवियस टाइम्स. इवन इन वर्ल्डोमीटर यू कैन चेक आउट ओवर हियर. हमने वर्ल्डोमीटर से था, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि डेथ्स कम है एज कम्पेयर टू द बर्थ. कैन यू सजेस्ट एनी वन रीजन? कोई भी एक रीजन बताइए. Come on, everyone, quickly. See, the reason that you might have thought also, and the reason that I will tell you is the improvement in the medical facilities. मेडिकल फैसिलिटीज में जो इम्प्रूवमेंट आया है उससे आप देखते हैं कि लोग ज्यादा सर्वाइव कर पा रहे हैं. देर आर मल्टीपल सोर्सेज अवेलेबल फॉर द ट्रीटमेंट. अब ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज बहुत इम्प्रूव हो गई है. दैट इज वाई एक ये रीजन भी है कि अब डेथ्स आपकी कम होती है. दूसरा रीजन हम ये देख सकते हैं, मतलब आप पहला रीजन जो मेरे को अभी यहाँ पर आई कैन सजेस्ट ऑफ यू इज दी मेडिकल फैसिलिटीज में इम्प्रूवमेंट. मेडिकल फैसिलिटीज में इम्प्रूवमेंट, राइट? बिकॉज अब आपको पता है इतना अच्छा ट्रीटमेंट फैसिलिटी मिलती है, गवर्नमेंट भी इतना पॉलिसीज निकालती है फॉर द एज हायर एज ग्रुप्स. जो ओल्ड एज पीपल हैं उनके लिए बहुत सारी गवर्नमेंट ने मेडिकल फैसिलिटीज निकाल रखी हैं. फ्री ऑफ कॉस्ट में आप देखते हैं कि मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा रही है सरकार आपको. सो देर आर ample number of improved facilities available right now at present. Also आप देखते हैं women's के लिए medical facilities में improvement आया है. Child medical health cares भी improve हुए हैं. So that is of course one of the reason that we find the decline in the death. The decline death rates जो है वो इतनी कम क्यों मिल रही है? Along with that, another reason that we can think of is that poverty has little bit reduced. अगर हम बात करें बिल्कुल एंशियंट टाइम्स की, व्हेन वी वर अंडर द कॉलोनी, जब हम ब्रिटिशर्स की कॉलोनी बने हुए थे, उस समय यहाँ जो सिचुएशन थी इंडिया में, दे वर वेरी डिवास्टेटिंग. वी कांट इवन इमेजिन कि उस समय जो पॉवर्टी एग्जिस्ट करती थी, बिकॉज एवरीथिंग वाज टेकन अवे. हमारी कंट्री को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था. दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू मेनी टाइम्स. हमने इस बारे में डिस्कशन करा है, राइट? सो किस तरीके से हमारी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस जो थी वो बहुत ज्यादा खराब हो गई थी. एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर आकर के चेंज कर दी थी. वो बहुत सारे एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स लेकर के आए थे. उन्होंने लैंड पैटर्न में चेंज कर दिया था. ऑल्सो आप ये देखते हैं कितना हैवी टैक्स लगाया जाता था. सो
बिकॉज ऑफ दैट पीपल डिड नॉट हैव एनीथिंग टू सर्वाइव। उस समय लोगों के पास में खाने को नहीं होता था। हमारे यहाँ पर आप देखते हैं कि सबसिस्टेंस फार्मिंग करी जाती थी। सबसिस्टेंस फार्मिंग मीन्स बेसिकली आप उतना उगाते हैं, आप उतना ही ग्रो करते हैं जितना आपकी नीड होती है, और जो एक्स्ट्रा सरप्लस उस ग्रोथ में होता है वो आप मार्केट में सेल कर देते हैं। बट द मेन मोटिव ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स वाज टू फीड योरसेल्फ। लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए, उन्होंने सबसिस्टेंस फार्मिंग को चेंज कर दिया। कमर्शियल फार्मिंग यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दी गई, जो कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ट्रेड वगैरह होने लगा क्रॉप्स का। फूड क्रॉप्स आप देखते हैं कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो फूड क्रॉप्स थी वो कम हो गई, उनकी ग्रोथ कम हो गई, इतना फूड क्रॉप्स पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। देयरफॉर आप ये देखते हैं कि जब फूड क्रॉप्स कम हो गई तो फेमाइन्स आने लगी, राइट। और फेमाइन्स अगर आने लगी तो पोवर्टी एग्जिस्ट कर रही थी। पोवर्टी आप देखते हैं बहुत ज्यादा उस समय पोवर्टी, एवरी पर्सन, यू कैन से एवरी थर्ड पर्सन, एवरी थर्ड इंडिविजुअल वाज इन द पोवर्टी। इतना ज्यादा डिवास्टेटिंग सिचुएशंस थी। फूड क्रॉप्स आपकी बिल्कुल डिक्लाइन कर दी गई। कमर्शियल क्रॉप से ज्यादा फोकस करा जा रहा था। अगर हम ब्रिटिशर्स के टाइम की बात करें तो उस समय आप देखते हैं कि फेमाइंस भी बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट थे। फेमाइंस मीन्स भुखमरी, बिकॉज आपके पास फूड ही अवेलेबल नहीं है, फूड क्रॉप्स अवेलेबल नहीं है। और अगर अवेलेबल है भी, सो जो अफोर्ड कर सकता था बस वही ले सकता है। एवरी क्लास was not able to have the food crop। हर किसी क्लास के पास में या हर किसी इंसान के पास में फूड अवेलेबल नहीं था। एंड दैट इज वाई आप ये देखते हैं कि स्टारवेशन की वजह से, भुखमरी की वजह से, फेमाइन आने की वजह से बहुत लोगों की डेथ्स हुई है। देयर हैव बीन डेथ्स नोटेड डाउन इन द मिलियंस। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि पार्टीशन के बाद से हम देखते हैं कि हमारी कंट्री में हमने क्रॉप्स ग्रो करना स्टार्ट करा। देन हम देखेंगे कि HYV सीड्स का यूज करना स्टार्ट कर दिया था। हाई यील्ड वेराइटी सीड्स हमने यूज करना स्टार्ट कर दी थी, बिकॉज ऑफ इस थोड़ा सा क्रॉप प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज हुआ। प्लस अब आप देखते हैं ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री से चले गए हैं, सो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करी, एग्रीकल्चरल सेक्टर पे बहुत ज्यादा फोकस करा। एंड दैट इज वाई पोवर्टी में थोड़ा सा रिडक्शन आया है। स्टिल पोवर्टी इज द मेजर थिंग दैट वी सी इन आवर कंट्री। पोवर्टी स्टिल अभी खत्म नहीं हुई है। बट अगर हम अर्लियर टाइम से कंपेरिजन करते हैं तो इन दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट वी कैन से कि लोग जो है भूख के मारे नहीं मर रहे हैं जैसा कि उस समय हो रहा था। स्टिल देयर इज अ सेक्टर ऑफ पॉपुलेशन जो कि अभी भी भूखी है। दे आर नॉट इवन एबल टू गेट वन टाइम फूड। दे आर ऑल्सो लिविंग इन स्टार्विंग। ठीक है। सो दैट्स अ डिफरेंट मैटर। बट एक जो हम यहाँ कंपैरेटिव स्टडी में आपको बताना चाह रही हूँ कि डेक्लाइन इन डेथ रेट जो नोटिस करा गया, दैट इज वन ऑफ द रीजन की बिकॉज थोड़ा सा कंडीशंस इंप्रूव हुई थी, अवेयरनेस आई थी। ठीक है। देन वी सी द डेथ रेट। सो डेथ रेट हम देख रहे हैं टिल 1980 high birth rates and declining death rate led to a large difference between the birth rate and death rate, resulting in high rate of population। आगे देखते हैं कि birth rate बहुत ज्यादा हाई, death rate कम है, इतना ज्यादा लोग नहीं मर रहे हैं। So there was a huge difference between these two aspects। बहुत ज्यादा अंतर था। एंड therefore आप देखते हैं कि जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज्यादा ग्रो कर रही थी। Since 1981, birth rate have also started declining gradually, resulting in a gradual decline in the rate of population growth। लेकिन 1981 से हमें देखते हैं कि बर्थ रेट भी आपकी धीरे धीरे डिक्लाइन होने स्टार्ट करती है। ठीक है। क्योंकि अब लोगों में धीरे धीरे समझ आ रही है। सी दिस इज द टाइम व्हेन जस्ट आप 1947 में पार्टीशन हुआ है, इतना ज्यादा उस समय केओस रहा, इतने सारे वॉर्स लड़े गए हैं। हमारी कंट्री के जो रिसोर्सेज है, रॉ मटेरियल था, पूरा का पूरा हमारी कंट्री के जो रिचनेस थे, दैट हैज बीन आउटवर्ड, आउटवर्ड फ्लो रहा है उसका शुरू से। ठीक है। सो अब क्या है, धीरे धीरे लोगों को समझ आ रही है। दिस हैज बीन द टाइम जब थोड़ा लोग बाग अवेयर हो रहे हैं, पीपल आर गेटिंग नॉलेज अबाउट कि किस तरीके से आपको सब चीजें देखनी होती हैं। सो बर्थ रेट अब आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा डिक्लाइन होने लगेगी, बिकॉज अब लोग थोड़ा समझ पा रहे हैं, रिजल्टिंग इन द ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। नाउ व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस ट्रेंड। अब जब हम ये ऐसे देख रहे हैं, इसके क्या कारण हो सकते हैं। सो द कारण दैट वी सी ओवर हियर आर द थर्ड कॉम्पोनेंट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज माइग्रेशन। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है, कॉम्पोनेंट आता है, दैट इज माइग्रेशन। माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस रीजन्स एंड टेरिटरीज। आपको मैंने पहले ही बताया बेसिकली माइग्रेशन क्या होता है, जब हम एक जगह से दूसरे रीजन में जाते हैं। ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल आप बोले
कि आप पंजाब से शिफ्ट हो गए हैं और आप जम्मू कश्मीर चले गए हैं, या फिर आप केरला से महाराष्ट्र साइड आ गए हैं। सो दिस इज अ माइग्रेशन प्रोसेस। माइग्रेशन कारण कुछ भी हो सकते हैं, कि आप मैरिज रीजन हो सकता है, और एजुकेशन रीजन हो सकता है, ऑक्यूपेशन रीजन हो सकता है। सो देयर कैन बी वेरियस रीजंस ऑफ माइग्रेशन। सो माइग्रेशन क्या होता है? इट इज द मूवमेंट ऑफ पीपल। व्हाट इज माइग्रेशन? इट इज द मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस रीजन्स एंड टेरिटरीज। माइग्रेशन अब दो तरीके का होता है। देखिए, इट कैन बी इंटरनल माइग्रेशन दैट इज विद इन द कंट्री, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, दैट वी आर एक्चुअली मूविंग विद इन द कंट्री। आप पंजाब से जम्मू कश्मीर चले गए, या केरल से महाराष्ट्र की साइड में आ गए हैं। दिस इज योर इंटरनल माइग्रेशन। इंटरनल माइग्रेशन वेयर बाय यू आर जस्ट मूविंग विद इन योर कंट्री, आप अपनी ही कंट्री में शिफ्ट हो रहे हैं। और इट कैन बी इंटरनेशनल ऑल्सो, दैट इज बिटवीन द कंट्रीज। और फॉर से एग्जाम्पल, आप इंडिया छोड़ करके और आप यूएस चले गए हैं, या फिर आप इंडिया से जर्मनी चले गए हैं, दैट इज योर इंटरनेशनल माइग्रेशन। ठीक है। सो यहाँ पर आपके दो टाइप ऑफ माइग्रेशन दे रखे हैं, इंटरनल माइग्रेशन एंड इंटरनेशनल माइग्रेशन। इंटरनल माइग्रेशन डज नॉट चेंज द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। जब आप अपनी ही कंट्री के अंदर शिफ्ट होते हैं, से फॉर एग्जाम्पल आप केरला से शिफ्ट होकर महाराष्ट्र में चले गए हैं, तो आपकी कंट्री का जो पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन, उसमें डिफरेंस नहीं आएगा, उसमें चेंज नहीं आएगा। बट इट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन विद इन द नेशन। लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है। पॉपुलेशन में चेंज नहीं आएगा, बट डिस्ट्रीब्यूशन में अफेक्ट करेगा। से फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा, हमने बोला कि केरला से जो है लोग शिफ्ट होकर के और अभी महाराष्ट्र साइड आ गए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑल ओवर द कंट्री पॉपुलेशन में चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि वो लोग अभी आप ही की कंट्री में हैं। बट पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न में चेंज आ जाएगा। अगर आप देखते हैं कि केरला से बहुत सारे लोग माइग्रेट करके महाराष्ट्र की तरफ जा रहे हैं ऑक्यूपेशन के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए, तो आप देखते हैं कि महाराष्ट्र जो है एक हब सेंटर बन जाएगा, जहां पर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन होगी। इट विल बिकम डिफिकल्ट टू लिव देयर। वहां है भी प्रॉब्लम्स स्टिल। अगर आप देखें प्रेजेंट टाइम भी आप देखें, तो महाराष्ट्र इज अ स्टेट विच इज हाईली पॉपुलेटेड, बिकॉज वो एक आप कहेंगे कि ऐसा स्टेट है जहां पर हर सॉर्ट ऑफ ऑक्यूपेशन एक्टिविटी मैटर करती है। यू हैव सो मेनी टेक कंपनीज वहां पर बहुत सारी हैं, एजुकेशन सेंटर है, वो एक इंडस्ट्रियलाइज्ड सेंटर है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस वहां पर पोर्ट्स अवेलेबल है। ठीक है। सो ट्रेड एक्टिविटीज होती है। सो लोग क्या है, ज्यादा से ज्यादा आप देखते हैं बॉम्बे की तरफ जाते हैं, पुणे की तरफ जाते हैं। सो ये वाले जो रीजन है, यहाँ पर ज्यादा माइग्रेशन होता है। राजस्थान से भी आप देखेंगे लोग महाराष्ट्र जा रहे हैं, पुणे बेंगलोर जा रहे हैं। सो दिस इज वाई आप देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो चेंज हो जाता है। क्यों क्यों डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रहा है? राजस्थान में से वो इंसान बाहर निकल के महाराष्ट्र में चला गया है, तो वहां पर अब पॉपुलेशन आपकी डिस्टर्ब हो गई है, एंड ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ हो जाएगी? महाराष्ट्र में। बिकॉज लोग वहां से माइग्रेट करके, सब आप देखो, आप देखते हैं गुजरात से बहुत लोग माइग्रेट करके चले जाते हैं, राजस्थान से काफी लोग हैं जो माइग्रेट करके महाराष्ट्र जा रहे हैं। So this is actually creating a disturbance in the population. डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, और ज्यादा आपको लैंड चाहिए होगा। दैट इज वाई आप देखते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है वहां पर, इतने सारे फ्लैट्स हैं एक साथ। दिस इज ओनली द रीजन। ठीक है। देन आप ये लाइन बोल रही है दैट इट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन विद इन द नेशन। तो नेशन में आप ये देखेंगे कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के पैटर्न में चेंज आएगा, लेकिन साइज में चेंज नहीं आता है। साइज का मतलब ये हो गया कि बेसिकली अगर आपकी कंट्री में 100 लोग रह रहे हैं, तो वो 100 ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो रहा है, बिकॉज आपकी ही कंट्री के अंदर इंटरनल माइग्रेशन हो रहा है। आर यू गेटिंग इट? आई होप इट इज क्लियरिंग टू यू। आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि से फॉर एग्जाम्पल आपकी कंट्री में 100 लोग रह रहे हैं, 100 पीपल आर लिविंग इन योर कंट्री। अब एक इंसान जो है वो गुजरात से माइग्रेट करके और महाराष्ट्र चला जाता है। ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 2 लोग थे, और ये 2 लोग जो है वो महाराष्ट्र चले गए। तो क्या 2 लोगों के महाराष्ट्र जाने से आपका ये 100% चेंज हो जाएगा क्या? नहीं होगा। दिस विल नॉट चेंज। भाई ये मूव भी तो कर रहा है खाली, साइज में कोई चेंज नहीं आएगा। 2 लोग थे, 2 लोग ठीक है महाराष्ट्र चले गए, महाराष्ट्र में जाकर के वहां पर थोड़ी पॉपुलेशन बढ़ गई। से महाराष्ट्र के अंदर अभी सिर्फ 50 लोग रह रहे थे, और 50 के अब कितने हो गए? 52 हो गए।
52 लोग हो गए टोटल महाराष्ट्र में। लेकिन जो आपका टोटल है वो तो 100 ही रहेगा ऑल ओवर द कंट्री। पूरी कंट्री का जो टोटल है वो तो 100 ही रहेगा ना, वो चेंज नहीं होगा। सो दैट इज योर साइज, वो आपका साइज है कि आपकी कंट्री के अंदर अगर 100 लोग हैं तो वो 100 ही है। चाहे लोग राजस्थान से महाराष्ट्र चले जाएं, या फिर आप देखें आंध्र प्रदेश से वो केरला की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, किसी भी कारण से वो माइग्रेट कर रहे हैं, लेकिन कंट्री में जो ये 100 है वो चेंज नहीं होगा। दैट इज योर साइज। तो आपका साइज चेंज नहीं हो रहा है, बट जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न कैसे, अगर ज्यादा से ज्यादा लोग गुजरात से महाराष्ट्र पहुंच जाएंगे तो गुजरात में थोड़ा कम हो जाएगी पॉपुलेशन और महाराष्ट्र की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, है ना। यहाँ पर 2 लोग अभी आके देखो, गुजरात में आप देखते हैं कि यहाँ पर अभी 30 लोग रह रहे, से फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं गुजरात में 30 लोग रह रहे थे और महाराष्ट्र में जो है आपके 50 लोग रह रहे थे। अब इन 30 में से आप मान लीजिए 10 जो लोग हैं वो गुजरात से महाराष्ट्र शिफ्ट हो जाएंगे। तो जब वो गुजरात से महाराष्ट्र शिफ्ट हो जाएंगे तो महाराष्ट्र की जो पॉपुलेशन है वो 60 हो जाएगी, ठीक है। और गुजरात में अब कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो आपकी ओवरऑल पूरी कंट्री की पॉपुलेशन है वो कितनी है, 100, उसमें चेंज नहीं आएगा। सो आपका साइज चेंज नहीं होता है, इट इज ओनली द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न विच चेंजेस। वो डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न है जो चेंज हो जाएगा, लेकिन साइज आपका चेंज नहीं होगा। आई होप दिस हैज मेड सेंस टू यू। ये एग्जाम्पल से आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि लाइन्स क्या कहना चाह रही हैं। So migration plays a very significant role in changing the composition and distribution of population. Composition भी मैटर करता है कि पॉपुलेशन किस तरीके की है वहां पर। आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र वाला जो स्टेट है वहां पर आपको हर तरीके के लोग मिलेंगे। You will find people from every corner of the country because वो एक occupational hub है ना। वहां पर मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज, टेक्नोलॉजिकल कंपनीज वहां पर है, ठीक है। दैट इज वन। In India, most migrations have been from rural to urban areas because of the push factor in the rural areas. देखो, 2 फैक्टर्स होते हैं, एक आपके पुश फैक्टर्स होते हैं और एक होते हैं आपके पुल फैक्टर्स। ना व्हाट आर पुश एंड पुल फैक्टर्स? पुश एंड पुल फैक्टर्स क्या होते हैं? See, there are 2 type of factors that affects the population distribution. पुश एंड पुल फैक्टर, ठीक है। अब पुश एंड पुल फैक्टर्स क्या होते हैं? पुश फैक्टर्स वो होते हैं जो कि आपको पुश करते हैं कि आप इस स्टेट से या इस पर्टिकुलर रीजन से माइग्रेट कर जाएं और कहीं और चले जाएं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं कि आपको ये स्टेट या ये जगह छोड़नी पड़ती है दूसरी जगह जाने के लिए। से फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पढ़ाई करनी है या आपको एजुकेशन लेनी है, आपको कॉलेज करना है, तो अगर अभी आप मान लीजिए कि राजस्थान में है, सो राजस्थान से आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पाएंगे, तो आप कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, कॉलेज की स्टडीज करने के लिए दिल्ली चले जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दिल्ली शिफ्ट होते हैं। सो दिस इज व्हाट द पुश फैक्टर इज, कि आप पुश हो रहे हो बिकॉज वहां राजस्थान में आपको एज सच कुछ कॉलेज नहीं मिल रहा है जो कि आपको चाहिए, और वो कॉलेज की जो फैसिलिटीज हैं, जो वॉट एवर आर योर डिमांड्स, वो आपको दिल्ली में ही मिल रही है। सो दिस इज वन ऑफ द पुश फैक्टर कि एजुकेशन की वजह से आप आपके स्टेट से बाहर जा रहे हैं एंड यू आर एक्चुअली गोइंग टू सम अदर प्लेस फॉर कंप्लीटिंग योर एजुकेशन। ये क्या हुआ, पुश फैक्टर। वही पुल फैक्टर क्या हो जाएगा? दैट इज दिल्ली जो है एक एजुकेशनल सेक्टर है, एक एजुकेशनल हब है। आपको पता है वहाँ इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं ऑल ओवर द कंट्री। स्टूडेंट्स एक्चुअली गो टू दिल्ली, दिल्ली में पढ़ने जाते हैं। तो दिल्ली का ये क्या है, पुल फैक्टर है कि वो ज्यादा पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करता है। ऑल्सो आप ये देखते हैं कि हमारी कंट्री का कैपिटल भी है। सो आप देखेंगे मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो दिल्ली की तरफ अट्रैक्ट होती है। क्यों हो रही है अट्रैक्ट? क्यों? देर आर मल्टीपल रीजन। ऑक्यूपेशन रिलेटेड वहां पर इतनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, कॉलेजेस हैं वहां पर इतने सारे, एजुकेशन सेक्टर बहुत अच्छा है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वहां पर बहुत सारे हैं, मार्केट्स वहां पर बहुत अच्छे हैं। सो दैट इज वाई आप ये देखते हैं कि आपकी जो पॉपुलेशन है वो इधर अट्रैक्ट होती है। सो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपकी पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करते हैं। तो जो फैक्टर्स आपकी पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करते हैं, दे आर बेसिकली पुलिंग द पॉपुलेशन, अपनी तरफ खींच रहे हैं कि आप हमारी स्टेट में आ जाओ, आप हमारे रीजन में आ जाओ, ठीक है। दैट इज द पुल फैक्टर। और पुश फैक्टर क्या होता है?
ऐसे कारण जिसकी वजह से आपको वो रीजन छोड़ के जाना पड़े। से फॉर एग्जाम्पल अगर आप राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में रहते हैं तो आपको पता है कि वहां पर आपको पानी नहीं मिलेगा। राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट है दैट इज अ कंप्लीट ड्राई रीजन, वहां पर आपको डेजर्ट ही डेजर्ट है। तो आप यहाँ पर रह सकेंगे क्या? नहीं रह पाएंगे। सो ये यहाँ पर क्या हुआ, एक डीमेरिट हुआ, एक नेगेटिव फैक्टर हुआ कि बिकॉज यहाँ पर फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा हाई है, तो यहाँ सर्वाइव नहीं करा जा सकता है। ठीक है, इस वजह से आप यहाँ से बाहर निकलते हैं और आप कहीं दूर चले जाते हैं या दूसरे स्टेट में आप चले जाते हैं। मान लीजिए कि आप मध्य प्रदेश चले, ठीक है, बिकॉज मध्य प्रदेश में आपने देखा कि चलो ठीक है टेम्परेचर भी सही है, वाटर फैसिलिटीज भी अच्छी हैं, तो आप ऐसे शिफ्ट हो जाते हैं। सो यहाँ पर पुश फैक्टर क्या हुआ, राजस्थान का पुश फैक्टर क्या हुआ कि यहाँ पर टेम्परेचर्स बहुत हाई हैं, वाटर फैसिलिटीज नहीं है, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं है, तो हम यहाँ से छोड़ करके और महाराष्ट्र जा रहे हैं। अब अगर आप महाराष्ट्र जा रहे हो तो महाराष्ट्र का कुछ पुल फैक्टर रहेगा। ठीक है, तो जहां भी आप शिफ्ट होते हो वहां एक पुल फैक्टर होगा। महाराष्ट्र में आप मान लीजिए वहां पर ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, तो ऑक्यूपेशन जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए आप वहां जा रहे हैं। ठीक है, सो आप ये देखेंगे कि जहां से आप निकल के जा रहे हैं वहां पर एक पुश फैक्टर मिलेगा। जिस आप जगह जा रहे हैं दैट इज द पुल फैक्टर, देयर यू विल फाइंड द पुल फैक्टर बेसिकली अट्रैक्टिंग द पॉपुलेशन टुवर्ड्स दैट रीजन। ठीक है,